worship you, Lord. I thank you, Father. Praise your holy name. Yes, Lord. Glorama sedere bereda namasha. Dinuko shoko namake telebike barabonto namostakarata namashe. Ribola manga barabatarastiki dalabaratara sho. Rebehene kishti kite la manga barabatara bashanda rastakarata. Ribahala kanda la boshoko robonto namosti. Rebelaha nikasto korodoro boshinda rastakudata brother. Belhara maste kite la marabakura bantara maste kite delebi. I am the righteousness of God. God's promises are yes and amen. With His stripes I am healed. That's yes and amen. I speak amen. From the top of my head to the tip of my toe, I am totally healed. Thank you, Father. He became poor. I know the grace of the Lord Jesus Christ, that He who, though He was rich, He became poor for me. So through His poverty I might become rich. So He has made me rich. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Lord, I thank you for those who are joining to our YouTube ministry, social media ministry through Facebook, and as well as this YouTube ministry. Father, I pray that your Spirit is going to minister to them, your word is going to minister to them. Every word that has been spoken is spirit and life, and it's going to work miracles in their life, in their finances, in their social life, in their, oh God, in their health, in their family, over their children. Everyone is going to be blessed because the word has power. And I thank you that your word is ministering to the people under the apostolic anointing. I thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Hello everyone. Hello सबों को मेरा greetings है. How are you all doing? आप लोग सब कैसे हैं? Today we are going to again get into the word, and we will be blessed because the preaching of the word is what is the power of God to save people, to heal people. परमेश्वर का वचन का प्रचार ही लोगों को उद्धार करता है, चंगा करता है, जीवन को बदलता है. अगर आप अभाव में हैं, घटी में हैं, तो प्रभु आपका घटी को दूर करेगा. तो सबों को I want to tell you, before we get into the word, मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन जाने से पहले sow something to this ministry as an offering. प्रभु के घर में जाने से पहले कुछ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना. ये पुराना नियम में परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन था. आज भी वो बदला नहीं है. We always go to God with some sacrifices, and giving to the kingdom of God is the wonderful thing that we can do. हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं क्योंकि this ministry is changing people's life. This ministry is establishing people in faith. ये जो सेवकाई है लोगों को प्रभु के पास लाता है, उनकी आंखों को खोलता है, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ाता है और लोगों के जीवन में मिरेकल करता है. So आप इस मिनिस्ट्री में तब दे रहे, you are showing into the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हैं. So thank you so much. So Father, those will show something, whatever they sow, doesn't matter. According to their eyes, maybe it is little, but whatever we give in a happy heart to the recognizing the ministry, जो भी हम देते हैं परमेश्वर उस मिनिस्ट्री को समझते हैं, उस मेंटल को, उस अभिषेक को समझ के जब हम देते हैं फादर, we know we are not going to miss the reward. हम उसकी जो रिवार्ड है उसको हम कभी खोएंगे नहीं. तो आपके वचन के अनुसार लूक चैप्टर 6:38, good measure pressed down shaken together running over, men are giving them into them as they obey God by giving to this ministry. In Jesus name, amen. जब वो प्रभु की नाम से प्रभु देते हैं, प्रभु तेरे इस सेवकाई को ये समझ के कि यहाँ पर एक प्रेरित सेवकाई चल रहा है, तो प्रभु उनको जीवन में ये लूक 6:38 के अनुसार न पूरे नाव से दबा के हिला के और उमड़ता हुआ उनको दे, लोग उनके पास दे, ला के दे. धन्यवाद यीशु. सो प्यारो, हम वचन से देखेंगे लूका रचित समाचार उसका 17 का और उसका
5वां वचन, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. This is important. यहाँ पर 5 में प्रेरित लोग यानी जो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को बोला, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे, इंक्रीज आवर फेथ। तब ईश्वर ने क्या उत्तर दिया? Did he gave them the right instruction? उन्होंने some advice, वहां पर उन्होंने कोई एडवाइस या एडवाइस नहीं दिया, उन्होंने उन्हें कमांड की, उनको बताया, इंस्ट्रक्ट किया कि आपको ऐसा करना है। क्या? इफ यू हैड फेथ एज अ ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, यदि तुम्हारे पास एक राई की दाना की तरह विश्वास है, जो कि बहुत छोटा होता है राई की दाना, ऐसे ye might say unto this sycamore tree, you might say to this sycamore tree, say, ये वर्ड को याद रखना, say, तुम ये सिकमाइन ट्री से कहोगे, यानी अंजीर के वृक्ष को, अंजीर के पेड़ को कहोगे, बी द प्लॉक्ड अप बाय द रूट। वहां पर लिखा है कि तुम रूट, उसका जड़ से तुम उखड़ जाओ, एंड बी द प्लांटेड इन द सी, तुम समुद्र में जाके माने रोपा जाओ, बोया जाओ, एंड इट शुड ओबे यू। यहाँ पर लिखा it should obey you, not it will obey you. It should obey you. Now there is a hidden truth that I'm going to tell you today. It's very, very vital. ये बहुत ही important सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। First तो आप, I want to tell you, are you a believer? Are you born again? Now यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करता है, दिल में विश्वास करता है, रोमी 10:9 में लिखा है, He is saved, वो उद्धार पाया हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 और 13 में लिखा है, जो यीशु को ग्रहण करता है वो परमेश्वर से जन्म पाता है, यानी ईश्वर जो आत्मा है उसका आत्मिक जन्म होता है। सो आप अगर जानते हैं कि आप यीशु को ग्रहण किए, यीशु में विश्वास किए हैं, उसके पुनरुत्थान में विश्वास किए हैं, उससे मुंह से अंगीकार किए कि वही प्रभु है, तो आपने यीशु को ग्रहण किया है। कौन ईश्वर को ग्रहण करता है? जो समझता है कि ईश्वर हमें प्रेम किया, और हम जब पापी थे, जब थे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रायश्चित स्वरूप होकर बलिदान होने के लिए आया था हमारे पाप के लिए, और वो अगर परमेश्वर से आया था तो उसका प्रमाण स्वरूप उन्होंने मृत्यु की ताकत को तोड़ के फिर से जी उठा। तो ये चीज हर विश्वासी को, व्यक्ति को, जो परमेश्वर के राज्य की प्रॉफिट या फायदे को लेना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने आए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10:10 में लिखा, जीसस केम टू गिव अस लाइफ। एंड और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु को पाए हैं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस ऑटोमेटिक। आपको परमेश्वर का वचन को जानना पड़ेगा, उसके ट्रूथ को जानना पड़ेगा, और जब ट्रूथ को जानेंगे यू विल टेक इट, आप उसको रिसीव करेंगे, और जब आप उसको रिसीव करेंगे वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। परमेश्वर को जो करना था वो क्रूस में किया है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि गॉस्पेल इज वेरी सिंपल ट्रूथ। सुसमाचार जो है वो सिंपल ट्रूथ है। तो संसार के जो कॉम्प्लिकेटेड लोग इसको ग्रहण करना, उसको विश्वास करना उनको नामुमकिन है। लेकिन मैं क्यों सिंपल बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने आदम के कारण पृथ्वी शैतान के हाथ में चला गया, कर्ज में चला गया, लेकिन यीशु के कारण फिर से पृथ्वी की सब कुछ जो मनुष्य के लिए बनाया गया था वो सब कुछ यीशु मसीह लौटाया। और एक चीज, आदम के कारण मनुष्य आत्मा में मर चुका था। ये प्रभु ने कहा कि जिस दिन तुम इस पेड़ की फल को खाओगे उस दिन तुम निश्चय ही मरोगे। तो वो मृत्यु था, आत्मा में परमेश्वर से वो लोग दूर हो गए, उनकी आत्मा से परमेश्वर चला गया। बस एक विवेक रह गया ताकि वो बुराई क्या है अच्छाई क्या है खुद उसके अनुसार चलेगा। लेकिन वो काफी नहीं था ईश्वर के साथ मिलन होने के लिए। सो परमेश्वर फिर से सबों को मिलाने के लिए जो प्रायश्चित किया वो यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा होता है। अब बोलेंगे मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आप पाप नहीं किया फिर भी हम पापी हैं। इस शरीर में जब रहते हैं तो हम पापी हैं। हमारा सोच, हमारे विचार परमेश्वर के विचार से अलग होता है। इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता होता है। जो उद्धारकर्ता को खोजता है यीशु मसीह उसका उद्धार करता है। ये मैं कह रहा हूँ, आप
हर एक को खुद का निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया गया है। इसको बोलते हैं फ्री विल, मेकिंग योर ओन चॉइस। सो ये किसी को, कोई लोग बोलते हैं फोर्स करते हैं, मसीह लोग नहीं फोर्स, किसी को फोर्स नहीं। सत्य को सुनो, जानो और उसको ग्रहण करो, एंड विथ योर ओन चॉइस। और जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारे आत्मा में नया जन्म पाते हैं, बाइबल के अनुसार हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। लेकिन ये सब दृश्य नहीं होता है, ये सब अदृश्य होता है। आपका उद्धार भी अदृश्य है, आपका नया जन्म होना भी अदृश्य है, लेकिन उसका जो उद्धार हम पाए हैं, उसका बहुतायत का जीवन को हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो इसको यीशु मसीह के लैंग्वेज में मैथ्यू उसका 5:13 में लिखा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम संसार की ज्योति हो, लेट योर लाइट शाइन। जब हम आर्थिक उन्नति करते हैं प्रभु के नाम से, विश्वास के द्वारा, जब हमारा शारीरिक चंगाई होता है, स्वर्गीय चंगाई को हम एंजॉय करते हैं प्रभु के नाम से, विश्वास के द्वारा, ये सब विश्वास, आपके कामों के द्वारा नहीं। आप अगर आर्थिक उन्नति करते हैं, बहुत बोलते हैं दिस इज हार्ड अर्न मनी, डोंट ट्राई टू से इट इज गॉड। गॉड गिव्स अस एवरीथिंग फ्रीली, लेकिन हमको एक चीज करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ कर चुका है। अभी हम धनवान हैं, वो दिखे ना दिखे, हम चंगे हो चुके हैं, वो दिखे ना दिखे, लेकिन वो दिखने के लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट है। हम इसको मैनिफेस्ट करने के लिए प्रभु हमें अधिकार दिया। तो यहां पर वो कह रहा है कि शिष्य लोग समझे जी विश्वास कितना बहुमूल्य है। यीशु मसीह समझा, वो लोग बोले प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा दे। एक बार जब उन्होंने एक मिर्गी बीमारी के साथ डील कर रहे थे चेले लोग, तो वो लोग नहीं निकाल पाए। बाद में लिखा है उस लड़का जिसको इस बीमार था, उसका पिताजी यीशु मसीह पास कंप्लेन लिखा है कि आपके चेले इस चीज को अच्छा नहीं कर सके। लेकिन यीशु मसीह तुरंत ही उस लड़का को अच्छा किया। तब चेले उनको आके गुप्त में पूछे, इन सीक्रेट लोग पूछे, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सकते? यीशु मसीह बोला तुम्हारे अनबिलीव के कारण। तो चेले समझ चुके थे कि थोड़ा सा भी अनबिलीव है जहां पर, वहां प्रभु काम नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह को उन्होंने पूछा कि क्या हमारा विश्वास को आप बढ़ा सकते हैं? वो सोचे कि यीशु मसीह बढ़ाएगा उस फेथ, लेकिन यीशु मसीह बोला कि तुम्हारे पास वो फेथ है। जो यीशु को विश्वास किया है उसके पास स्पिरिट ऑफ फेथ है। हर व्यक्ति के पास इंसान होने के नाते फेथ है, लेकिन एक है ह्यूमन फेथ। लेकिन ह्यूमन फेथ हर समय क्या होता है, जो कि नेचुरल मैन का फेथ, वो उसका 5 सेंस से बाहर वो कुछ सोच नहीं सकता। जैसे कि यीशु मसीह, यह भी जो पोर्शन हम पढ़े लूका रचित सुसमाचार से, यीशु मसीह एक असंभव बात बोला कि तुम इस अंजीर पेड़ को बोलो कि जड़ से उखड़ जाए। ये जड़ से उखड़ना, बोलने से जड़ से उखड़ेगा। एक दूसरा, बोलने से जाकर समुद्र में प्लांट होगा, समुद्र में बोया जाएगा। कोई समुद्र में पेड़ उगता हुआ मैं तो नहीं जानता, मैं समुद्र गया नहीं हूं, लेकिन एक असंभव बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो विश्वास के द्वारा असंभव बात किया जाता है जब हम प्रभु की ओर से विश्वास लेके काम करते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक बोल रहा है कि व्हेन इफ यू हैव ए faith of a size of the mustard seed, अगर एक राई की दाना की तरह तुम्हारे पास विश्वास है, तो बोलता है तुम्हारे पास विश्वास है, then he instructs them to say, बोलता है कहो। ये जो कहो या say to this, ये जो say शब्द है ना, वो सारा इसका ग्रीक में ऐसा नहीं है, उसका मीनिंग बहुत सारा है। एक है अथॉरिटी के साथ बोलना, दूसरा है जो बोले हो उसको मेंटेन करते हुए बोलना, उसमें स्थिर रहते हुए बोलना। तो यही चीज यीशु मसीह बोलता है, वही ग्रेट फेथ है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा ट्रूथ है कि अगर यीशु मसीह का गॉस्पेल हम विश्वास करते हैं कि वो बीमारों को उठाया है, ये गॉस्पेल है, लेकिन हमारे जीवन में बीमार है, तो हमारा शरीर कह रहा है कि हमारे बीमार है, डॉक्टर भी बोला, डॉक्टर रिपोर्ट में बोला बीमार है, और हम अगर एक नेचुरल मैन के हिसाब से सोचते हैं कि नेचुरली वो कैसा हील्ड होगा, तो वो भी संभव हो सकता है जितने कह सकते, लेकिन ये से एक सुपरनेचुरल फेथ पावर कैसे रिलीज होगा उसके बारे में होता है। वो बोल रहा है कि उसके गॉस्पेल
ऑलरेडी जो करना था परमेश्वर वो कर चुका है। इट्स नॉट गोइंग टू डू इट, ही इज नॉट गोइंग टू हील यू, वो कर चुका है। लेकिन यहां पर एक सच्चाई है, क्या? यू हैव टू टेक दैट ट्रूथ एंड बिलीव इट। आप उस सच्चाई को लेके विश्वास करना, लेकिन बिलीविंग इन द हार्ट इज नॉट इनफ। Believing in the heart, with a believing heart you speak. That's what Jesus is saying. विश्वास के हृदय में बोलो, और बोलो मतलब क्या? तुम जो बोले हो वो होगा, जरूर होगा। तो यहां पर एक सच्चाई है कि आप अगर बोले हैं तो आप सोचिए कि हुआ है और उसमें स्थिर है, उसमें आपको चेंज नहीं होना, ये उसका इंस्ट्रक्शन था। लेकिन हम गॉस्पेल को पहले तो विश्वास नहीं किए तो बोलेंगे कहां से? क्यों हमारा विश्वास काम नहीं करता? क्योंकि हम लोगों का सजेशंस, बहुत सारे प्रीचर्स का प्रीचिंग सुनते हैं, हम अपोस्टोलिक टीचिंग सुनते नहीं। जो अपोस्टल्स हैं उनके पास एक अनॉइंटिंग है, उनके पास एक अथॉरिटी है, प्रभु उनको चिन्ह चमत्कार के द्वारा उनका जो कॉलिंग है उसको वो एस्टैब्लिश किया है। हम बाइबल जानते हैं, ठीक है, बाइबल प्रचार कर सकते हैं एज ए विटनेस के तौर पे, पवित्र आत्मा में भरते हो विटनेस। लेकिन जब एक स्पेशल कॉलिंग है, अपोस्टोलिक कॉलिंग, उनके पास एक विश्वास डेवलप किया है परमेश्वर, और उसको जब हम सुनते हैं वहाँ स्पिरिट एंड लाइफ होता है, तो उसको आप रिसीव करो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी बीमारी यीशु मसीह क्रूस पे लिया है। लेकिन जहां पर अनबिलीव होता है वहां ये गॉस्पेल जैसे कि उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। आज बहुत सारे मसीह बीमार हैं, बहुत सारे मसीह आज गरीबी के साथ संघर्ष कर रहे। मैं भी एक दिन था, मेरा मन जब नया नहीं हुआ था, बच्चन में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, तब मैंने पैसा के एरिया में बहुत स्ट्रगल किया है। आज का दिन मैं आपको बोल रहा हूं, ये नहीं कि पॉकेट हमारा खाली नहीं होता है, बैंक अकाउंट खाली नहीं होता है, वो तो होता रहेगा, लेकिन मेरा जो सोच बदल चुका है कि वो मुझे धनवान बनाया है, मुझे कोई घाटी नहीं है। ये जो सोच बनाने के लिए क्या किया? आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ, आई हैव टू स्पीक एंड डोंट चेंज। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा का हेल्प मैंने लिया। क्या? जो नहीं दिखता है वो है, इसको ही विश्वास कहते हैं। आप जो विश्वास से बोलते हैं, लोगों को बोलने की बात नहीं है, पहले आप अपने हृदय में उस विश्वास को स्टैब्लिश करो कि प्रभु का गॉस्पेल जो है वो झूठ नहीं है, वो कंगाल बनना। दूसरा कोरिन्थियों उसका 8:9 में लिखा है, यू नो द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हैं कि दो ही वाज रिच, वो यद्यपि धनी था, फॉर आवर सेक ही बिकम पुअर, वो हमारे लिए करीब हो गया था, सो दैट वी थ्रू हिज पॉवर्टी माइट बिकम रिच। हम उसके कंगाली, उसके कंगालपन के द्वारा हम धनवान बनते हैं। तो ये सत्य है, वो हो चुका है, ये प्रभु फिर से नहीं करेगा ये लेकिन ये अदृश्य हिसाब से सत्य है। इस अदृश्य सच्चाई को दृश्य में बदलने का काम हमारा विश्वास है। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टिंग। यीशु मसीह के लैंग्वेज में लेट योर लाइट शाइन। तुम्हारा लाइट जो है लोगों के पास, मैं इसको नहीं समझाता until इसको थोड़ा समझाता, मैंने क्या बोला, पार्शियली। लेकिन अभी हाल ही में एक प्रभु की अपोस्टल, जो कि ट्रू अपोस्टल, आई कन्फेस इट, उनका मीटिंग अटेंड किया और उनके हैदराबाद में, and God spoke to me. We must manifest the life that we carry. हम जो लाइफ हमारे भीतर है बोलकर, मैं जानता था कि वो लाइफ मेरे भीतर है, I was knowing, but many things I was not interested to manifest. मेरा कोई ये नहीं था, इच्छा नहीं था कि इसको मैनिफेस्ट करें। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उस मीटिंग में जाने के द्वारा कि आवर लाइट हैज टू शाइन, अदरवाइज पीपल विल नॉट नो, दे विल नॉट विटनेस। अगर हमारा लाइट, हमारे पास जो ज्योति है, जो लाइट है, वो अगर शाइन नहीं होगा, लोगों को दिखेगा नहीं। ये दृश्य में जो लाइट है वो नेचुरल वर्ल्ड का है, लेकिन ये जो लाइट है ये स्पिरिचुअल है, जो परमेश्वर के सत्य से हम लोग पाते हैं, ट्रूथ से पाते हैं। और वो लाइट हम हैं ऑलरेडी, लेकिन हमको मालूम नहीं है। और ये लाइट शाइन होना मतलब परमेश्वर का जो यीशु मसीह जो किया है वो सब हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होना। लोगों के पास पीस नहीं है, अगर प्रभु का आप पाए हैं तो आपको बोलना है, थैंक यू लॉर्ड आई हैव पीस। बोलेंगे मैं फील नहीं किया हूं, कम ऑन शट अप। आपको फील नहीं करना, आपको जस्ट बिलीव करना है। व्हेन यू बिलीव इट विल मैनिफेस्ट। जब फील करना, वो मैनिफेस्टेशन होने के बाद हम फील कर सकते, हो सकता है। लेकिन आप अगर विश्वास करते हैं कि ये बात हो चुका है तो खुश रहेंगे, थैंकफुल होंगे। यही है सीक्रेट।
I have a very wonderful family. Every one of my children love God. I start to speak. यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, speak. Speak. If you don't learn to speak, and once you speak, that's it. Don't change it. यीशु मसीह बोलता है बोलो, और जो एक बार अगर बोल दिए वो वैसा है। अभी हाल ही में मैं अपोस्टल ग्रेस की एक मैसेज सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि हिब्रू में I shall be a doctor, I will be married, ऐसा नहीं बोला जाता है। वहां पर बोला जाता है आप जो हैं वही बोलते हैं हिब्रू लैंग्वेज में, I am this और I am not this, that's it। I will be नहीं है। So यहाँ पर एक ट्रूथ मुझे मिला। That's why यीशु मसीह बोला जो तुम्हारा हाँ है वो हाँ हो और जो ना है वो ना हो। अगर इसके विरुद्ध में जो कुछ होता है वो दुष्ट आत्मा का काम। यीशु मसीह गॉस्पेल में ये चीज बोला तो मेरा समझ में आ गया, अरे यार मैनिफेस्ट करने का काम मेरा है। गॉड अपना काम कर चुका है गॉस्पेल के द्वारा। अभी गॉड करता है, नो दैट्स नॉट ट्रू, वो कर चुका है। हाँ, परमेश्वर का पावर मैनिफेस्ट होता है जब हम उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं और वो पावर के द्वारा वो चीज दृश्य में होता है। लेकिन हम लोग का कॉन्शियस ये है कि जब हुआ है तो हम विश्वास करते हैं, दृश्य में दिखेंगे तो हम विश्वास करते हैं, जैसे थॉमस का निकलना हुआ था। तो आज ये जो सच्चाई में आपको बोल रहा हूँ, ये आपका हर आपको मिनिस्ट्री, जस्ट स्पीक अबाउट इट। आई हैव ए ब्लेस्ड मिनिस्ट्री, पीपल आर जस्ट कमिंग इनटू माय मिनिस्ट्री, पीपल आर गेटिंग इनटू द सेविंग नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। स्पीक दीज वर्ड्स। आप अगर मिनिस्टर हैं, आप अगर परिवार के समस्या के बारे में आप बोल रहे हैं, स्टॉप स्पीकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, स्टार्ट सेइंग द रिजल्ट, स्टार्ट सेइंग द रिजल्ट। आप बोलना शुरू कीजिए। इस तरह से अगर हम विश्वास को, जो यीशु मसीह सिखाता है, चेलों ने बोला हमारा विश्वास बढ़ा, यीशु मसीह बोला विश्वास अगर है तुम्हारे पास तो बोलो। यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शन क्या है? विथ ए बिलीविंग हार्ट स्पीक। तो बिलीव क्या करेंगे? सत्य को। क्या सत्य है? गॉस्पेल, यीशु मसीह जो किया। सो इट्स अ सिंपल ट्रूथ। नहीं शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान वैसा कर रहा है, हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। सो जो दृश्य में चल रहा है वो ऐसे ही लैंग्वेज बोलता रहेगा, लेकिन आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। यू आर ए सन ऑफ गॉड, यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर ए न्यू क्रिश्चियन, न्यू क्रिएचर। ऑल थिंग्स आर पास्ड अवे। आप एक नई सृष्टि, आप परमेश्वर का पुत्र हैं, संतान है। आपकी परिवार यीशु के लोगों के द्वारा खरीदा गया है। कम ऑन, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर माइंड, जस्ट फोकस द गॉस्पेल। देयर इज पावर, देयर इज स्पिरिट इन इट। Speak, my business is just, money is coming, my business is well, my business is experiencing God's blessing. Anything you desire, Mark 11:24, whatever you desire, यीशु मसीह बोला, in prayer receive it. So ये जो इसमें हमको स्थिर होना पड़ेगा। When we learn this secret, we'll enjoy it. So thank you so much for listening to this message। आप जो मैसेज को सुनिए इसलिए धन्यवाद। So मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूँ कि if you can relate to this teaching, आप अगर इस टीचिंग को समझ पाए सकेंगे और होली स्पिरिट में प्रार्थना करते हुए वचन को अपनाएंगे और अपने बोली चेंज करेंगे, अपने सोच को चेंज करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम टुडे I release that spirit upon your life. Spirit of faith come to you. The words of faith come out of your mouth. Let everything that you are facing is change. आप जो भी फेस कर रहे हो वो चेंज हो रहा है। आपका बिजनेस चेंज हो रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ज्योग्राफिकली आप जहां भी रहिए, डजंट मैटर। स्टार्ट विद जेरूसलम, एंड्स विद द एंड ऑफ द अर्थ। जेरूसलम से विटनेसिंग स्टार्ट होता है, पृथ्वी के छोर तक आप जाके गवाही दे सकते हैं। सो ज्योग्राफिकल आप कहाँ हैं इसलिए आप कंगाल है, वहां होने से आप धनी होते, ये सब कॉन्सेप्ट इंसान भरा है। अब जहां है वहां भी वेल्थ भरा है। प्रभु वो वेल्थ आपके पास लाएगा। हिज ब्लेसिंग विल मेक यू रिच। उसका ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ये तब तक नहीं काम करता जब आप विश्वास से बोलना चालू नहीं करते। आपको डिवाइन हेल्थ चाहिए, आप बोलिए, स्टार्ट टू से आई एम हियर विद दैट कन्विक्शन। सिकनेस प्रभु क्रूस में लिया है, इसको इमेजिन करते हुए आप बोलिए, थैंक्स दीजिए यार। डोंट स्टॉप स्पीकिंग। जैसे जो 12 साल से उसका लहू बह रहा था जो स्त्री, उन्होंने ही केप्ट ऑन सेइंग, बाइबल लिखा है, वो मन में ही वाज स्पीकिंग टू हरसेल्फ, केप्ट ऑन सेइंग
ये वस्त्र छूना उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो अलग चीज है, वो अलग सब्जेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन kept on saying whatever she said, she believed. Mark 11:23. And she didn't change. And it happened. The same way, your car, your house, everything, you can take it by faith. It's somewhere there. It is somewhere there. Your car, your name is there. You have to call it out. You have to call it out. I never did that. मैं इसको नहीं किया. I tell you. I was so, so puffed up. No, I don't have any attachment to the things of this world, and it was a vain pride in me. So I never tried for this. Now I need it for the ministry. I need wealth. I need car. I need houses. I need staff. And I know all these things can be achieved by faith. So friends, we have a great job, and Jesus is coming soon. यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। हम लोग का एक बहुत बड़ा काम है। आप अगर इसका सीरियसनेस को समझते हैं, ज्वाइन टुगेदर, हम लोग के साथ ज्वाइन कीजिए। हमारा प्रेयर आपके साथ है। सो फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, दोज हू बिकम अ पार्टनर ऑफ दिस मिनिस्ट्री, join this ministry. I pray, Father God, you are speaking to many people, Lord, and Lord God, you are setting them free. I release your healing power. I release your financial blessing upon their life. Anything that is trying to stop and hinder the things that God has for them, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारा हिंड्रेंस यीशु के नाम से दूर होने पाए, क्योंकि उनके जो भी उनका है प्रभु इस दुनिया में, वो अभी हो सकता है वो दृश्य में नहीं देख पा रहे, वो सब उनके जीवन में यीशु के नाम से आने पाए।